बताइए सुमित, कौन सा शेयर है? शुगर टीम पे आज जो कंपनी चुन के लाया वो केबल कारोबार से है, CMI लिमिटेड को चुना है। चुनने की वजह कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा करीब 40% बढ़ा है YOY बेसिस पे, और ना केवल YOY बेसिस पे बल्कि सीक्वेंशियली भी बहुत कम ऐसी कंपनी जिनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ता है। ये उनमें से है कि इसके पिछले 1 साल के नंबर्स को अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी जो मुनाफा है वो दोगुना हुआ है YOY बेसिस पर, और एक अच्छे नंबर ऑपरेशनली भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पर प्रमोटर का एक अच्छा स्टेक है और वो भी बढ़ाया गया है। लास्ट 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इस कंपनी का। करीब 3% स्टेक तो प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर के अंदर ही बढ़ाया है। तो एक अच्छा स्टेक प्रमोटर ने इंक्रीज किया है, जो अभी भी एक अच्छी होल्डिंग के साथ कामकाज कर रहे हैं। कोई भी हिस्सा प्रमोटर का गिरवी नहीं है। इसके अलावा एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती आ रही है, शेयर बुक वैल्यू के करीब है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ कंपनी की ऑपरेशनल जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ वैल्यूएशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बाकी स्पेस जो कि पूरा करीब 26 से 27 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, ये महज 7 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो अपने स्पेस में एक सस्ते वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल, और हालिया करेक्शन के बाद यानी हायर लेवल जो करीब 400 रुपए के आसपास के, वहां से काफी करेक्शन भी आ चुका है। तो हायर लेवल से करेक्शन के बाद एक अच्छे दाम पर भी दिखाई पड़ रहा है। FY18 के लिए अनुमानित EPS भी करीब 20 रुपए के आसपास की, और महज 6 के मल्टीपल की बातचीत हो रही है। फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है, उनका मानना है 176 तक के टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सुमित आपका। तो CMI आज का सुपर शेयर जो कि 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, और फिच की ऑटो सेक्टर पर एक रिपोर्ट भी आई है, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। वी हैव विद अस मिस विकी मेलबर्न, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंडस्ट्रियल्स साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फिच रेटिंग्स। मिस मेलबर्न, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। My first question will be, as of now, Fitch is maintaining stable outlook on Indian automobile sector. But do you see any impact on the sector going forward post demonetization? Thank you for having me. We sort of highlighted in our sort of recent report on the outlook into the Indian auto manufacturers that we think that the demonetization is likely to be felt more on the luxury passenger vehicles, which are generally the high ticket, and they're the ones that have the greater reliance on the unaccounted money. Commercial vehicles are generally funded using sort of bank loans, and so therefore they're going to benefit from any reduction in interest rates as a likely fallout of the demonetisation. Potentially, the other sort of segment that could be at risk is the two-wheelers, where there's a greater reliance on cash, but they're sort of small ticket items, and then once things start to stabilise quickly, we don't expect to see any sort of significant impact on that aspect as well. Vicky, my second question is, do you believe the FY17 is good for the auto companies, or it's make an impact on the Indian economy? Yeah, I think across the various segments, I think they're all going to improve in 2017, but to a varying degree, of course, once this short-term liquidity issue is resolved. Certainly on the passenger vehicle side, we're expecting an increase in volume of 7 to 9%. Things driving that is improving consumer confidence, new model launches coming out, as well as the lift on ban on the sale of diesel cars in Delhi. And certainly on the commercial vehicle side, I think there's sort of several catalysts there to support auto sales next year, whether it's infrastructure push, low interest rates, good monsoons. Certainly all of those items will certainly have a positive impact on auto sales next year. Okay. Vicky, as you said right now, you see some impact on luxury vehicle segment post demonetization. We are interacting with a lot of managements here, and they maintain a view as they see immediate impact on auto numbers post this development. But my question is, how do you see auto sales to pan out in remaining 2017? Do you see sales to pick up in various segments, be it passenger vehicle segment, commercial vehicle segment? I mean, as I said, in terms of sort of the passenger vehicles, we expect a pickup next year. Interestingly, in terms of the two-wheeler sort of space, surely we've seen the sort of impact that demonetisation has had already. But the two major sort of two-wheeler companies, and I think sort of it was only yesterday. Also earlier this week, that sort of Hero came out and said that they're already starting to see
sort of stabilisation in terms of the footfall and inquiries post the first week of demonetisation. Certainly in passenger vehicles, it's the reasons like low ownership costs, low interest rates, low fuel prices, and boost to the rural economy, healthy infrastructure sort of spending. They all still remain intact. So I think once the liquidity works through the system, we certainly expect to see an impact. And obviously, your commercial sort of vehicles as well. We think will also have an impact post successful implementation of the GST. Vicky, we saw the GDP numbers yesterday. We have saw 7% growth in the Indian economy. Do you believe after denomination, India is still grow with the pace of more than 5%, or we can say the 5 to 7% range? That's obviously more of a question for our sovereign analysts. In terms of our forecasts around India's GDP growth, but what you would have also seen, we published earlier this week our global economic outlook, and in that paper we still see India, we're still forecasting sort of a strong GDP growth of India of 6.9 for financial year 2017 and 7.7 in FY18. But as I said, that's more something that our sovereign team would cover as opposed to myself. Okay. Well, thanks Vicky for joining us and for talking to us. तो यहाँ पर आपने विकी मेलबर्न का व्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन वो एक स्टेबल आउटलुक मेंटेन कर रहे हैं 2017 के लिए भी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर. लग्जरी कार सेगमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रही हैं. और जीडीपी ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि FY18 में 7.7% जीडीपी ग्रोथ वो इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर रही हैं. राजेश, शुक्रिया आपका. मानस, आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए. अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. प्रदीप गुप्ता हैं हमारे साथ आनंद राठी से. मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस. मिस्टर गुप्ता, पिछले 1-1.5 महीने में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो, डीमोनेटाइजेशन हो, या फिर ये ओपेक का ही डिसीजन क्यों ना हो प्रोडक्शन कट को लेकर. जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उसके उलट ही ये सब हुआ है. अब इन सभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बीच में अभी मार्केट्स पर आप क्या व्यू मेंटेन कर रहे हैं? जो बढ़त हमने सीरीज की शुरुआत से देखी है, क्या वो सस्टेन करेगी? इन सभी फैक्टर्स को मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पेन अभी भी आ सकता है? मिस्टर गुप्ता की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उससे रिकनेक्ट करेंगे. HDFC में एक ब्लॉक डील हुई है और वो 9 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है. एक बार आप वो देख लें. 1277 के रेट पे ब्लॉक डील है और ऑलमोस्ट अभी शेयर 11 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. मिस्टर गुप्ता इस इनफेक्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं. सर, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए. देखिए सर, ओवरऑल जब लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत हो रही थी तब उस समय ताज़ा नोटबंदी हुई थी. अब हम काफ़ी हद तक उसको डाइजेस्ट कर चुके हैं. आप भी ऐसा समझते हैं कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी इसको डाइजेस्ट कर रहा है, या फिर अभी भी 2 महीने का समय है? मार्केट और इकोनॉमी दोनों को इतना समय तो देना ही होगा. ऐसा है, जैसा मैंने उस समय भी कहा था और अभी वापस रिपीट करूंगा कि ये एक 2 से 3 महीने का जो गैप है, आई थिंक वो 2 से 3 महीने का समय इस सारे किस्से को, सारे एपिसोड को देना पड़ेगा. क्योंकि अभी भी कई ग्राउंड लेवल पे परेशानियां हैं. उसके बाद जो पब्लिक एट ए लार्ज में माइंडसेट परिवर्तन आएगा, कंप्लीट माइंडसेट थोड़ा चेंज होना शुरू होगा. तो आई थिंक 3-4 महीने का समय हमको इसको देना पड़ेगा वापस रिवाइवल की साइड देखने में. बट द मोमेंट हम रिवाइवल देखना शुरू करेंगे, आई थिंक वापस ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काफी अच्छे नजर आएंगे, इकोनॉमी काफी अच्छी दिखनी शुरू होगी. तो ये हम शुरू से बात कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने का थोड़ा सा एक पेनफुल समय रहेगा, जिसमें हम काफी धीमापन, इकोनॉमी का धीमापन या कुछ कठिनाइयां जो हमारे सामने आएगी उसको हमको फेस करना पड़ेगा. जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर महेश पाटिल हैं, उनको भी शामिल करते हैं शो में. मिस्टर पाटिल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. अभी आपका व्यू क्या है इंडियन मार्केट्स पर? जैसे मिस्टर गुप्ता से बातचीत कर रहे थे कि पिछले 1-1.5 महीने में बहुत इवेंट हैवी और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सभी फैक्टर्स को मार्केट डिस्काउंट कर चुके हैं,
या फिर अभी भी जो कंसर्न्स है वो नियर टर्म में बने रहेंगे? सो मार्केट में अभी जो नियर टर्म में जो करेक्शन आई हुई है लगभग 8-10% की करेक्शन, उसके दो कारण हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है और दूसरा ग्लोबल फैक्टर्स देखे जैसे यूएस के बॉन्ड डील्स जो स्पाइक हुए हैं 50 बेसिस पॉइंट से, उसके कारण इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी रिडेम्पशंस आउटफ्लो हुए हैं। तो ये दोनों का इम्पैक्ट मार्केट पे अभी असर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट का जो असर है आई थिंक वो अनदर एक आध महीना और कंटिन्यू होगा जब तक नए प्रेसिडेंट पावर पे नहीं आते हैं। तब तक आई थिंक बॉन्ड डील्स ऊपर ही रहेंगे। उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आगे कैसा रुख रहेगा वो देखना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसका असर काफ़ी हद तक मार्केट में आ गया है, बट कंपनीज़ में जो अर्निंग्स की जो इम्पैक्ट आएगी वो अपने 1-2 महीने में उसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक ये Q3 और Q4 में इसका इम्पैक्ट जारी रहेगा और जो अर्निंग्स ग्रोथ की बढ़ने की जो अपेक्षा थी ये क्वार्टर में, उसमें थोड़ी डाउनवर्ड रिवीजन हो सकती है। इसके कारण आई थिंक मार्केट शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा नीचे अभी आ सकता है यहाँ से करेक्शन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, बट जैसे जैसे मार्केट में और इकोनॉमी में लिक्विडिटी वापस आ जाएंगी, नई करेंसी नोट आ जाएंगी, आई थिंक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है। सो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 महीने में लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बॉटम आउट होगा और जैसे जैसे सुधार होगा और जो डीमोनेटाइजेशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका अगर हम लोग इफ़ेक्ट देखने लगेंगे और नेक्स्ट ईयर फरवरी 1 में बजट है, वहाँ पे आई थिंक काफ़ी अपेक्षा रहेगी कि गवर्नमेंट क्या करती है अभी आगे, जो इकोनॉमी को जो शॉक लगा है उसको कैसे रिवाइव करती है, क्या पॉलिसी मेजर्स रहेंगी, कैसे जो टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी आ सकती है, इसके बाद वो पैसा कैसा खर्च करेगी, उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट में आगे मोमेंटम बनी रह सकती है।